बिजनेस करने के लिए यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल एजुकेशन पाथ, या फिर इफ यू आर इन अ कन्वेंशनल एजुकेशन पाथ आप बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकते. बट देन व्हाट हैपेंस इज यू डोंट रियलाइज कि लिंक्डइन से आप कितने बड़े लोगों से बात कर सकते हो, एंड दे आर जस्ट वन मैसेज अवे, दे आर लिटरली जस्ट वन मैसेज अवे. यू नो, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है दैट एज इन व्हेन योर एज गोज अप आप मोर रिस्क अवर्सिव हो जाते हो. सॉरी, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, योर peers are learning अर्निंग मोर. A person who can take a risk at let's say 20 years cannot take the same risk at 26. Wow. So it's another episode Chit Chat with Skillers and आज हमारे साथ में एक और अमेजिंग गेस्ट हैं और उनका नाम है चेष्टा. चेष्टा की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है बिकॉज चेष्टा ने अनकन्वेंशनल करियर चूज़ किया है एंड आज चेष्टा से मिलेंगे और जानेंगे उनकी स्टोरी चिट चैट विद स्किलर्स के साथ में. लेट्स गो टू चेष्टा. Hi everyone, hi Shivam sir, thank you so much for having me here, and I am really excited and looking forward to this conversation that we're going to have about unconventional career paths, startup founders, digital marketing space, and all about it. चेष्टा, यू नो व्हाट, जब मैंने पहली बार कई साल पहले शायद मैं मिला था आपको, शायद आप जब हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे तब मैं आपसे मिला था. No, actually, funny story, you might not remember it. We had our first conversation जब मैंने आपको Instagram पे text किया था Okay. for my first ever business, which was when I was in 12th standard. You were in 12th and you were building a business that time. Yes, I started a small business. It was Okay. an Instagram store, and it was pretty simple. I figured that मैं जहाँ रहती हूँ उसके पास काफ़ी quirky, interesting stationery मिलती है. And I like stationery. I love it too. I was Yeah. also a stationery junkie, and Yeah. I realized that a lot of people are like that. But अभी तक उस time तक, this is back in 2019, and a lot of people. 2019 you were in class 12th. अभी आपकी एज कितनी है? I'm 22. Wow, amazing. Perfect. Okay. Please continue. So I figured that काफ़ी लोग quirky stationeries पसंद करते हैं. तब तक Amazon पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे available नहीं थी. There were also not a lot of websites doing this. So I just figured that this is something that I like. Maybe a lot of people would also like. And I was also starting to understand what Instagram is. How does an online business work? And 12th में पढ़ते हुए realize हुआ कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है. So I started with that small store, right? And I basic inventory ली and all, but थोड़े टाइम बाद मेरे को realize हुआ that I need to do something to boost up revenue. कुछ marketing सीखनी पड़ेगी, कुछ Instagram ads सीखने पड़ेंगे. That is where I came across your profile. Okay. And you used to do something on your story. Yeah. You used to tell some growing business tips and everything. So I just texted you. That's how maybe we you would met. help me. Yes. But चेष्टा, जब लोग नॉर्मली 11th क्लास या 12th क्लास में होते हैं तो बड़ा वरीड होता है कि मेरे बोर्ड्स एग्जाम हैं, मुझे उसके बाद में फिर PCB लेना है या कॉमर्स लेनी है, कुछ लेना है. वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और फैमिली से बहुत ज़्यादा होता है. तो आप तो 12th में बिजनेस बना रहे थे, तो आप पे प्रेशर नहीं था सच? Because my family is also a business family. Okay. They kind of understand this thing. Plus, not to boast, but I was always I got away with studying pretty easily. तो कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई. लास्ट में टॉप करने वाले लोग, ऐसा कुछ? Guilty. Okay. So that was the case, but actually सिर्फ theoretical learning is something that never inspired me, that never made me feel nice, right? Just learning books and not doing anything about it was painful to me. So I just did that. Of course my mom told me कि just wait till your boards get over Yes. and then start it. End of the day, she's a mom, right? Right. She definitely, and she was right. But I mean, curiosity, right? I couldn't stop I used to study for however many hours for a day, and then I used to just say, Mom, give me my phone now, and I want to do all the research. So I used to तो look. आप क्लास 12th के साथ साथ अपने बिजनेस पे भी आप दिमाग लगा रहे थे, राइट? Right. Last 2-3 months only. Yeah. ठीक है. Yeah. फिर कब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे या तो करियर या लेट्स से कन्वेंशनल एजुकेशन लाइक BA, BCom, BBA, आपने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की? I did my bachelor's in business economics from CVS DU, University of Delhi Delhi, में, right? Okay. And it was an entrance-based course again. So You must have scored high marks to get there, is it? both high marks plus I had to score a good rank in the entrance. उस time पे DU JAT होता था. Okay. Now it has come to CUET. A lot of 12 students. पेपर तो नहीं लीक हुआ था उसका? No, Okay. not at all. Alright. And I scored 600 something rank in DU JAT, which got me to CVS, Bachelor's of Business Economics. And to answer your question, I never made this choice. And to date, I don't believe in this thing that आप business करने के लिए you have to get
away from the conventional education path, या फिर if you are in a conventional education path आप business नहीं build कर इवन सकते. बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, दे आर डूइंग अ जॉब एंड उनको लगता है कि बिजनेस करने के लिए शायद जॉब छोड़नी पड़ेगी, विच वॉज नॉट ट्रू इन माई केस. जब मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया था, पहले मैंने वाटर को टेस्ट करने के लिए मैं साइड बाय साइड जॉब के साथ में कुछ आइडिया को परस्यू कर रहा था, कुछ फ्रीलांसिंग कर रहा था, कुछ पैसे ऑनलाइन बना रहा था. जब मुझे लगा हाँ यार ये कर सकते हैं, देन आई मेड अ कैलकुलेटिव रिस्क कि चलो अब मैं जॉब छोड़ देता हूँ. तो आपके साथ भी कुछ ऐसा था या फिर मतलब आपने तो शायद जॉब ही नहीं किया मेरे ख्याल से. No, I haven't, and very true. I mean, but the point here is that आपको एक चीज, especially when it comes to something as risky as starting up your own business, it is not very practical of the decisions True. to just jump into it altogether, because there is a study by Stanford जिसमें there is a graph which shows that the initial momentum होता है when you start up a business, it goes over very high. सब लोग आपको congratulate करते हैं, सब लोग आपकी bravery को बहुत value करते हैं. And then all of them go their own paths and you dip, right? Yeah. So what happens there? Do you have the means to practically sustain yourself from there and sustainably build your business along the way? Or would you just stumble down because you made a brave decision at one point, and now you don't have the means to sustain it, right? कॉलेज डेज कैसे थे आपके? Pretty fun actually. So college में ही when I was introduced to this world called startups, and that was, I'm really grateful to it. It was by the incubation center of my college, which was ERIC. So you have an incubator center in the college? Yes. Oh, So pretty cool. and also CVS DU has the first ever student run incubation center, right? First year में I got ये introduced होता to क्या it. इंक्यूबेशन सेंटर? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है. Incubation center is basically इंक्यूबेशन सुन के तो हॉस्पिटल वाली फीलिंग आ रही है. no. So incubation का word का मतलब ये होता है that fostering an egg. राइट. एक एग की केयर करना so that it hatches into a full formed new life from it is what the scientific word of incubation is. Okay. In respect to startups, इसका मतलब होता है just a body. Incubation center is a body which helps एक एकदम नेसेंट बिजनेस आइडिया उसको मेंटोरशिप देकर या उसको ऑफिस स्पेस देकर उसको फंडिंग रिसोर्सेज तो देकर. अगर कोई स्टूडेंट है और उसको अपना स्टार्टअप करने के लिए ऑफिस स्पेस चाहिए तो फ्री में मिल जाता है ऑफिस? दैट डिपेंड्स ऑन आपका इंक्यूबेशन सेंटर के कैसे टर्म्स एंड nice. कंडीशंस हैं. बट हमारे कॉलेज में द स्टूडेंट रन Very इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ कोर्स, एंड स्पेशली कॉलेजेस हैव, some colleges in India have very robust incubation centers. Okay. Be it Pides by BITS Pilani, which is also in collaboration with my startup now, or NSRE Cell from IIM Bangalore, everybody knows it, right? And my college's incubation center, which was ERIC, right? So at that point it was just starting out, like अभी लोगों को पता नहीं है बहुत ज़्यादा कि क्या है incubation center, कैसे help करता है. तो we used to run these programs, and that is where I got introduced to, okay, businesses not just चांदनी चौक businesses नहीं होते हैं. There are, because that was my idea of a business, right? Because you come from a traditional business background. Right. तो आपको लगता है कि वो बिजनेस होते हैं, बट नाउ इन कॉलेज आपको एक एक्सपोजर मिला कि ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं. राइट, विच आर एसेंशियली स्टार्टअप्स, एंड यहाँ पे वेंचर कैपिटल होता है, यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, एंड मोनेटाइजिंग इज वन थिंग बट यू आर एसेंशियली सॉल्विंग फॉर द ग्रेटर तो गुड. मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स को ये भी पता होना चाहिए कि एक बिजनेस और एक स्टार्टअप में क्या फर्क होता है. अब बिजनेस तो एक लाला टाइप दुकान भी हो सकती है जो चांदनी चौक में चलती है, बट अ स्टार्टअप इज अ कंपनी विच इज सॉल्विंग फॉर अ प्रॉब्लम ऑफ कोर्स विद सम इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी ऑल्सो, जो कि शायद वो चांदनी चौक वाली दुकान में उतना इनोवेशन में भी ना मिले और स्केलेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी. तो ये एक स्टार्टअप की एक पहचान है कि इनोवेशन विद स्केलेबिलिटी. इज इट? राइट, डेफिनेटली, एंड दैट इज व्हाट एरिक इंट्रोड्यूस्ड मी टू. सेकंड ईयर में आई मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द एरिक, सो वहाँ से आई तो बड़े गॉट पढ़ाकू, मतलब आपने तो टॉप भी किया फिर प्रेसिडेंट भी बन गए. नहीं, दैट्स इंटरेस्टिंग. I mean, I'm grateful for the opportunities. It was such a learning experience. I don't think I've learned more than Eric in any of my classes in college. But it was from my seniors and from the startups we used to meet, right? From the mentors we used to pitch to. तो उसी टाइम हमने आपको भी आपको एज एरिक मेंटोरशिप के लिए पिच किया था, एंड हम अपने स्टार्टअप्स के लिए सेशंस रखवाते थे वेरन हम उनकी प्रॉब्लम से आपके फोकस कॉलेज के करते बारे थे. में एक बड़ी फनी बात सुनी थी कि कॉलेज की लोकेशन बड़ी खतरनाक है. इज इट? बहुत दूर है क्या ऐसा? नॉट रियली, वो इसलिए होता है बिकॉज CVS को CVS के नाम से कोई नहीं जानता है. इट इज भगत सिंह के साइड वाला कॉलेज.
सो Okay. इस वजह से दे से ये कहाँ पर है ये? शेख सराय, साउथ दिल्ली, मालवीय नगर। ओके, क्योंकि मैं कल किसी से कन्वर्सेशन कर रहा था, इनफैक्ट पिछले पॉडकास्ट में किसी से कन्वर्सेशन कर रहा था, वो कहते थे उसकी लोकेशन ऐसे कि मॉर्निंग में आओ तो शाम को जाते हो, मतलब कुछ ट्रैफिक वगैरह होता है या फिर ढूंढना बहुत मुश्किल है ऐसा? रूमर्स नहीं, रूमर्स okay, ऑल ठीक, रूमर्स, ठीक, सिलेक्ट सिटी वॉक के सामने है, Alright. ऐसे कैसे। ठीक है। तो जब आपका कॉलेज पूरा हो गया तो उसके बाद में यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मुझे अब मे बी एक जॉब स्टार्ट करनी है या फिर मुझे एक बिजनेस में जाना है, तो हाउ अबाउट दैट? राइट, सो एक्चुअली वाइल आई वॉज इन द लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, कोविड हो गया था। आई मीन व्हेन आई वाज इन अ सेकेंड ईयर ओनली कोविड हो गया था, कॉलेजेस शट हो गए थे। एरिक का भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस घर से हो रहे थे। देन ऑफ कोर्स आई रियली रियलाइज्ड, एंड कोविड वाज एन एडटेक सेक्टर बूम, एवरीबडी नोज अबाउट इट, Definitely. राइट। एकदम से एक नई एरा ऑफ एजुकेशन हमको देखने को मिली थी, जहाँ पे बीट द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 दैट केम इन उस टाइम पे। सो वो पॉलिसी के बारे में बताइए। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी विच केम इन 2020 एक बेसिक इनिशिएटिव है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट to transform the Indian education system into something new, to Okay. basically evolve it. And the major, if I talk about the broadest vision of the NEP, is a holistic education पे focus करना, which essentially translates to कि सिर्फ academics पे focus करना is not the only way forward. हमको holistically from the grassroots level education बनानी चाहिए. Secondly, multilingualism in education should be there so that everybody feels representative. Okay. Right? So that is what NEP 2020 was about. And उस टाइम पे बच्चे घर में थे, स्कूल जा नहीं रहे थे, everybody was worried. तब हमने बहुत सारे edtech startups का some rational, some irrational, बहुत ज़्यादा बड़ा boom देखा, right? That बच्चे घर पे कोडिंग सीख रहे हैं, बच्चे घर पे communication वो मतलब skills कुछ सीख ऐसा रहे कर रहे हैं जो शायद इंडिया ने कभी पहले नहीं किया। Right, definitely. एकदम से it pushed the circumstances, pushed everybody to just innovate, to also एकदम से सबको Zoom सीखना आ गया, बच्चों को भी, टीचर्स को भी, एजुकेटर्स तो को। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जब आपको अपना बिजनेस आइडिया के बारे में आपको Right, पता चला। definitely. So I always, because my family business is also into the education sector, I used to talk to teachers. I used to be close to the school education fraternity, and I always felt कि whatever we are learning is of course important, but it is not whole. It is not relevant would be the right word. And मेरे को उसके लिए solve करना था. I wanted to try to make school education as relevant as possible Right. for a school student, right? And that is what we set out to do. तो मुश्किल नहीं था कि एक कॉलेज पास आउट होने के बाद में एक स्टार्टअप को चूज़ करना जहाँ पे अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है, कुछ पता नहीं कितना पैसा कमाओगे और रिस्क भी बहुत बड़ा है, एंड देयर इज़ अ जॉब कि आप अच्छे कॉलेज से पास आउट हो, आप टॉप रैंक करो तो आप आई एम श्योर बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स भी ले सकते हो, तो आपके लिए टफ नहीं था कि एक अच्छा कॉर्पोरेट करियर में चूज़ करूँ या मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करूँ? I think it all depends on आपके what is your calling and how much do you know yourself. Like I said in the beginning also, risks लेना important है and calculated risk लेना उसके साथ ज़्यादा important है. So like I also said, मैं बिल्कुल ये believe नहीं करती हूँ कि conventional education and building a business is mutually exclusive. Okay. I very well think both of them can fit well into a journey together and also complement. तो मैंने ये सोचा that I want to study further as well, but that is something जो मैं बाद में भी कर सकती हूँ when maybe I will be less risk aversive. तो basic human psychology होती है that when your age goes up, आप कम risk aversive हो जाते हो, आप more risk aversive हो जाते हो, I'm sorry, because responsibilities आ जाती है, your peers are earning more. A person who can take a risk at let's say 20 years cannot take the same risk at 26. If तो all यू मीन टू से कि आप जितने यंग हो तो आपकी रिस्क एबिलिटी उतनी बड़ी होती है एंड पीपल शुड टेक रिस्क एट अ अर्ली एज। Right, and that was my major agenda towards it कि what better time to do it than right now, right? And also there was this whole thing that I wanted to solve this problem, really wanted to solve this problem. उस time पे I did not think about what the monetary situation 1 year down the line would be, because I always thought that बहुत time है उसको solve करने के लिए and we would do it, right? And also at the same time I also did a couple of side gigs to sustain that जैसे? startup thing. So I did a small printing business to help event managers do their कि जैसे छोटी notebooks होती है, diaries होते हैं, pens होते हैं, तो I used to just make a few calls and उससे I used to get certain एंड मुझे लगता है कि clients. बहुत सारे फाउंडर्स ये करते हैं, जब हम इनफैक्ट बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी करते हैं साइड गिग्स। मैं अभी पिछले पॉडकास्ट में हमने देखा वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, दैट पर्सन यूज टू डिलीवर जोमैटो में डिलीवरीज करता था। अदर पर्सन आई टॉक ही यूज टू क्रिएट वेबसाइट्स एंड आई माई सेल्फ यूज टू सेल टेडी बियर्स।
Oh, that's so nice. In college days, I used to sell teddy bears, Valentine gifts to college student out there. I used to make good passive income. मैं सारे सदर बाजार से सारे सॉफ्ट टॉयज और जो वैलेंटाइन के जितने भी गिफ्ट होते हैं हम लेकर आते थे. We created a small website in 2010 I'm talking about. And used to get decent orders. उस टाइम पे व्हाट्सएप ज़्यादा एक्टिव नहीं था. उस टाइम पे आई गेस एक फ़ोन आता ब्लैकबेरी. तो ब्लैकबेरी का BBM बहुत वायरल हुआ करता था, तो हम उसके थ्रू सारी सेल करते थे. हमने अच्छा पैसा कमाया और उस स्टार्टअप में दोबारा इन्वेस्ट किया. हालांकि वो स्केल नहीं हो पाया, बट ये चीज़ अगर आप साइड इनकम अर्न करते हो तो आपकी कंपनी को या आपके जो मिशन को वो फ्लोट रखता है बिना किसी से पैसे लिए. तो आपने जो साइड गिग्स है उसमें कैसे इनकम अर्न किया आप बता सकते हैं? आई जस्ट फिगर्ड कि मेरे नेटवर्क्स कैसे हैं, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू क्रेडिट द नेटवर्किंग पार्ट ऑफ इट टू यू एज वेल, बिकॉज आई इंटर्न फॉर लिटिल वाइल विद यू इन दिल्ली एंजल्स. एंड वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बात की, बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स से बात की, एंड आई रियलाइज्ड दैट यू नो हाउ डू दे थिंक, हाउ डज एन इन्वेस्टर थिंक, हाउ डज अ स्टार्टअप फाउंडर थिंक्स, राइट. एंड उस वहाँ से बहुत सारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी ऑफ कोर्स मिली, एंड आई गॉट द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन नेटवर्क, राइट. इतना मुश्किल नहीं है किसी इन्वेस्टर से. कि ये जो नेटवर्किंग स्किल है ना, अभी भी एक टैबू है बहुत सारे लोगों में. बहुत सारे लोग डरते हैं, आइस ब्रेक नहीं कर पाते, रीच आउट नहीं कर पाते, या अभी आज भी कोल्ड रीच में अगर उनको बोला जाए तो हाय 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 करके, हाय सर, बिग फैन सर करके रिप्लाई करते हैं. मुझे लगता है नेटवर्किंग को बहुत अच्छे तरीके से लिवरेज करना चाहिए. आपने कैसे लिवरेज किया? आपने क्या टूल्स यूज़ किया? आपकी कौन सी प्रैक्टिसेस आपके काम आती है वाइल नेटवर्क विद पीपल? I think the most important thing which a person should be learning very early on is communication skills, emotional intelligence and networking, right? And when I talk about networking is something जो कि मैंने of course एक offline networking से start करी थी, but then I really realized the power of LinkedIn when I started my startup. Okay. So उससे पहले I also used to think that what is it? It's just an informal, very formal platform, and people just come in here. Gen Z को Instagram बहुत पसंद है, right, right. And Gen Z usually thinks कि LinkedIn पे तो सब boast कर रहे हैं सिर्फ, we don't want to be there, right. which is partially true, but then what happens is you don't realize कि LinkedIn से आप कितने बड़े लोगों से बात कर सकते हो, and they are just one message away. They are literally just one message away. So LinkedIn has this feature called connection plus add a note. So आप add a note, which was also taught to me by Shivam sir, by the way. And वो add a note feature से आप उनको कुछ text भेजते हो, and before accepting their connection request उनके पास already एक point आ जाता है. I think अगर मैं sum करूँ, the most important thing to network is to have a reason to do it. If you will text somebody to just say hi sir, can we talk, they will not talk to you because they don't have the time to do it, right? But if you will go to them that sir, you are working in this education sector and I am solving for this problem which I think you have worked on before, I think we could do well together. Just इतना लिखने से they have a reason to talk to you. You're bang on girl. बिल्कुल बिल्कुल सही चेष्टा ने बोला, because networking with the right content and right context can be a boom. और मुझे लगता है जो छोटा सा फीचर है ना, ऐड नॉट, इट्स अ किलिंग फीचर, और अभी भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. True. अगर आप देखो, अगर आपकी लिंक्डइन पे भी रिक्वेस्ट देखें कि आपके लिंक्डइन पे कितनी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, इफ़ यू ऑब्जर्व 10 लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है, बट ऐड नोट शायद एक या उसने भी नहीं किया होगा. तो ऐड नोट फीचर इज अंडर यूटिलाइज, यू शुड लिवरेज इट, इससे पहले कि सब लोग लिवरेज करना स्टार्ट कर देंगे. एंड आई थिंक एक और बहुत ज़रूरी चीज़ अबाउट लिंक्डइन इज दैट गो टू दैट पर्सन्स प्रोफाइल, मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड कि वो बंदा क्या कर रहा है एक्चुअली. डोंट जस्ट हैव वन एड अ नोट मैसेज. ऐसा भी होता है कि आप एक एड अ नोट मैसेज बना लिया विच विल कॉपी पेस्ट टू एवरीबडी. लार्जली वर्क नहीं करेगा. मेक इट कस्टमाइज्ड, मेक इट एज कनेक्टेड टू दैट पर्सन एज पॉसिबल, ताकि उसको लगे यार इस बंदे ने एटलीस्ट 2 मिनट मेरी प्रोफाइल पे स्पेंड किए हैं. उसके बाद दे हैव फाउंड समथिंग रेलेवेंट टू टॉक टू मी अबाउट, एंड यू विल बी शॉक्ड बाय द responses that you get from people. I agree. I've connected to I've connected to even Arun Sharma sir, because I was nice. Yeah, with just a text, no response. तो कौन से 5 लोगों के नाम लोगे जिनको आपने सोचा नहीं था कि उनसे आप कनेक्ट कर पाओगे, एंड यू एबल टू ड्यू टू बिकॉज ऑफ डिजिटल एंड यू बिकॉज ऑफ योर नेटवर्किंग स्किल? Okay, so I connected to the CEO of Shivnadar Group. Oh, that's HCL company, right? Right. No, the CEO. He's the owner. Okay. The CEO is Colonel Gopal. Nice. Right. And he's an amazing person, a brilliant educationist. I connected with him this way. Okay. Connected to a lot of directors this way, the school directors this way, because that's what my space is. And The first is Shivnadar one. Yes. The second one? I connected to Mr. Rahul from Raghav Global School. He owns a chain of schools for that. Okay. I connected to somebody from GD Goenka as well, right? The GD Goenka group owner, right? And
I also I connected to Arun Sharma sir this way. I connected to Rishabh Agarwal, who is an angel investor, Wow. right? So technically, I just got the 5 names. I'm sure the list is pretty long, and everything is happening at the age of 22. Yes. That's great. मुझे लगता है कि मैं 22 साल की एज में अगर अपने आप को देखूं, मैं तो कॉलेज में था, टाइम पास कर रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत साइड गिग कर रहा था, बट शी इज किलिंग इट एट 22. अपना वेंचर भी रन कर रही हैं, नेटवर्किंग भी कर रही हैं, आज पॉडकास्ट में भी हैं. तो कैसा लगता है मतलब इतना कुछ करते हुए 22 साल की एज में? I think I don't derive a validation from this age factor because जेनजी करता है मतलब जेनजी हैव अ वेरी वैलिडेशन और समथिंग लाइक दैट, राइट? I don't think I do. Because I think there's a long way to go before I would call myself where I have reached, where I want to reach, right? So अभी तो we're just getting started. बहुत कुछ करना बाकी. You're These so are the humble. first steps. I can see that. But बहुत सारे लोग चेष्टा ऐसे हैं जो ना अभी शायद 20s में है, अर्ली और मे बी मिड, एंड दे सीम लाइक बहुत ही कंफ्यूज है. मतलब अभी कुछ किया नहीं, दो उनको कुछ चीज़ की, उनको कुछ और करना, दैट्स फाइन, बट दे कीप ऑन कंफ्यूज. तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसे कंफ्यूज? Very much so. I have just one rock solid solution to this, and that is don't think, just do. Right? Okay. Because I've seen even my interns, so my interns were even younger than me, of course. So I see this, a lot of conversations we keep having with them, and I realize that an intern of mine, Jenny, brilliant girl, so talented, but she always tells me that I keep on getting confused कि next step ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, and उस overthinking process में I lose out the opportunity, right? Maybe हम ये कर सकते थे, but वो कर सकते थे. There'll always be another thing that you could do. There'll always be something that might have become bigger. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आ रहा है. शिष्टा, अभी हमने जेनजी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, और अभी देखो जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो जेनजी के ऊपर में बन रहा है. लाइक ब्लिंकिट ने आदत डाल दी है 15 मिनट की ग्रॉसरी की. कहाँ हम खाना भी खुद बनाते थे एक टाइम पे, मतलब आप तो शायद ब्लिंकिट वाले हैं, बट आज हम टेक को तो अडॉप्ट कर चुका है, बट वे आई सी माई टीनेज बहुत डिफरेंट था, राइट? एंड द वे इट्स हैपनिंग टुडे इज वेरी डिफरेंट. तो कैसी दिखती है आजकल की जेनजी की हैबिट्स? आप क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? बिकॉज बिलियनियर्स ये बोल रहे हैं कि ऑब्जर्व करो जेनजी को, हाउ दे आर बिहेविंग एंड बिल्ड समथिंग ओवर इट. तो उसी से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जेनजी को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? क्या उनकी आदतें हैं जो आपने ऑब्जर्व की हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है इन जेनजी, एटलीस्ट जेनजी हु इज फोकस्ड, डिटरमाइंड एंड हैज़ अ विजन. So while Gen Z who has a vision have this habit of, or you have this vision ki we want a work-life balance. We want quality of life, right? They are already asking questions like how does it make sense to work a 70-hour week, which was of course an infamous statement, right. But so they are already asking questions like that. They're already striving for their mental health rights and their quality of life so they start rights. giving time to themselves, Right. They realize that we shouldn't compromise on other aspects of life to just give in to this toxic hustle culture जो मेरे को लगता है उनकी जनरेशन से पहले बिल्ड हो गया है, राइट? विच आई कंप्लीटली अग्री टू कि बिकॉज दे आर द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक मेंटल हेल्थ और व्हाट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट लुक्स लाइक, राइट? और ऑफ कोर्स देयर आर न्यूमरस डार्क इंस्टेंसेस हमारे नेशन में जो इस चीज़ को अटेस्ट कर सकते हैं. तो आई थिंक द मोस्ट स्टैगरिंग डिफरेंस इज दैट दे आर रियलाइजिंग दिस कि वी नीड टू ऑल्सो हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस. तो मुझे ऐसा लगता है जो फाउंडर्स अब जो नई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो अगर जेनजी को भी सेंटर में रखें, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जिस तरह से वो लाइफ जीते हैं, तो शायद कुछ और बड़ा बनाया जा सकता है, राइट? ब्लिंकिट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. अभी मैं ब्लिंकिट का कल ट्विटर पे एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, विच इज़ नाउ एक्स, कि नाउ इन द नेक्स्ट 3 years, पिछले 3 साल में ब्लिंकिट ने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, बट नाउ दे आर बिल्डिंग फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस. दे आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी वैल्यूड एट $50 billion. एंड द बिजनेस मेड इन जस्ट 3 years and made by college dropouts. तो कुछ ऐसी स्टोरीज ना मतलब गूज बम्स देती हैं यार. 3 साल पुराने लोग हैं और $50 billion की कंपनी बना रहे हैं, एंड दे आर जेनजी. तो मुझे बड़ा अंदर से गूज बम्स आते हैं. जेनजी बहुत कुछ कर सकता है, बट पर्सनली आई फील बड़े डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा हसल में रहते हैं और कन्फ्यूजन बहुत है जेनजी. आई थिंक द टर्म दैट यू आर लुकिंग फॉर इज स्पॉइल्ड बाय चॉइस.
सो क्या Okay. होता था कि पहले इतने सारे ऑप्शंस का इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होता था. दैट इज़ वाई वी यूज टू हैव सर्टन करियर पाथ्स जिसके बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, एंड वी यूज टू जस्ट मेक अप आवर माइंड्स अबाउट इट. बट नाउ इवन आई कम फ्रॉम दिस जनरेशन ओनली ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवरलोड जनरेशन, Right. जहाँ पे इतने सारे पाथ्स अवेलेबल है इंटरनेट पे. विद द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन नो एनीथिंग अबाउट एनी करियर पाथ एग्जिस्टिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद पीपल ऑफ दैट करियर पाथ. तो नेचुरली पीपल गेट more and more confused every तो day. ऑप्शन ज़्यादा है इसलिए कंफ्यूजन ज़्यादा. That's true. वेरी Yeah. इंटरेस्टिंग. तो चेष्टा, सिंस वी आर मूविंग, बट मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा डिजिटल के तौर पे, बिकॉज आज की डेट में आप ध्यान दें मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. पीपल आर सीरियस अबाउट मेकिंग अ पर्सनल ब्रांड, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एड क्रिएशन, देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, राइट? हाउ डू यू सी मार्केटिंग इज इवॉल्विंग, और मार्केटिंग ने आपको कैसे हेल्प किया आपके करियर में ग्रो करने में? आई एम स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग, आई एम सेइंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. सो डिजिटल मार्केटिंग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दैट इज विजिबिलिटी प्रॉब्लम, राइट? अभी हमने चांदनी चौक बिजनेस का एग्जाम्पल लिया. इवन अ बिजनेस विद अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट, अ ब्रिलियंट सर्विस, ब्रिलियंट आफ्टर सेल सर्विस, एवरीथिंग गोइंग सुपर वेल, विल ओनली बी विजिबल उनके आसपास के लोगों को अगर डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो डिजिटल मार्केटिंग इन दैट सेंस गिव्स विजिबिलिटी टू दैट स्मॉल चांदनी चौक बिजनेस ओनर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, राइट? एसेंशियली एंटायर वर्ल्ड. वो जहाँ पे भी अपने आप को शोकेस करना चाहता है वो कर might be सकता not है. possible earlier. That was completely not possible, and if you look at it, it's a huge superpower, right? That you have something and you have the power to showcase it to billions of people all together, right? That is the leverage, that is the power that digital marketing gives you, तो right? इसको अपने बिजनेस में आपने कैसे यूटिलाइज किया, कुछ अगर आप पॉइंट्स बताना चाहें? Sure. So I started off with the first encounter of something with digital marketing was Instagram store only. That store that I started Yeah. in 12th, and I ran Instagram ads on it, right? Wow. And तब मैंने सबसे पहले एक बहुत important चीज़ notice की कि यहाँ पे हम target कर सकते हैं, हाँ. which I think is another Crazy, which is crazy crazy. superpower, right? अगर कोई सुपर पावर को अच्छे से यूज करे Really, and of course it's also investment, right? But when I look at a traditional business, they don't have a control on कौन लोग उन्हें देख रहे हैं, right? या कौन लोग इवन दे आर नॉट कंसर्न अबाउट कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, उनका डेटा भी नहीं लेते हो. right, they don't care about, let's say even a store in a mall, they can't control who walks in. True. Right? But when you have an online store, when you're doing digital marketing for it, you can very much control कि अगर if I have a quirky stationery business, तो कौन सी वो Gen Z 15 to 18 years की girl होगी या boy होगा जिसका इंटरेस्ट स्टारबक्स में जिसका है. इंटरेस्ट इस यूनिकॉर्न Yeah. बुक में होगा, एंड आई कैन एसेंशियली थ्रो माई एड एट ओनली दैट पर्सन, राइट? वी ऑल्सो लिव इन अ एज ऑफ डेटा इन्फ्रिंजमेंट, दैट इज वाई ऑल्सो दिस इज पॉसिबल. तो बोथ साइड ऑफ द कॉइन्स, बट एसेंशियली दो क्रेजी पावर्स हैं, विजिबिलिटी एंड टारगेटेड मार्केटिंग, which I actually resonate with the same. मुझे लगता है कि अगर कोई बिजनेस बना रहा है और आज के दिन में डिजिटल बिजनेस बना रहा है, बहुत सारे पैरामीटर्स जिसको आप यूज कर सकते हो, बट दीज टू थिंग्स कैन किल इट. मतलब आपके बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं. आई नो सम पीपल जिनका कोई ऑफलाइन बिजनेस नहीं है एंड दे बिल्ड एंटायर बिजनेस ऑनलाइन एंड दे आर स्केलिंग लाइक एनीथिंग. तो डेफिनेटली चेष्टा, आई एम श्योर डिजिटल मार्केटिंग कैन बी ह्यूज हेल्प फॉर ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर. कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो ये लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे इसी एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप में आप हैं, तो आपके मुंह से बात निकली हुई बहुत मायने रखती है. तो कुछ ऐसी बात आप बोलना चाहेंगे? I think the most important thing that you can do right now is upskill and experiment, right? Okay. Don't stay in the zone of I will do it someday. Just do it, and don't be afraid of failure. Ki what would happen if this does not work out? It'll all be a part of a success story that you will tell one day. So don't be afraid of taking the small steps, small successes, small failures. They all matter, and at the same time they don't matter. The failures are not as big as you think they are right now. तो हमारा माइंड हमारे साथ में प्ले करता है, वो उनको बड़ा दिखाता है प्रॉब्लम. Of course, yeah, of course. थैंक यू सो मच चेष्टा, आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायर करेगी एंड आई एम सो एक्साइटेड जब ये शो लाइव जाएगा और नीचे कमेंट्स आएंगे एंड आप चेष्टा के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, उनके बिजनेस के बारे में और जान सकते हैं. आई विल टैग चेष्टा प्रोफाइल इन द बायो सेक्शन, यू कैन जस्ट चेक इट. एंड इस वीडियो को प्लीज़, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम ऐसे बहुत सारी अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ चैनल पर लाते रहेंगे, सो दैट यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. Thank you so much, Cheshta, for having me here. Thank you so much, sir.